Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to discuss the syllabus which was released by CBSE yesterday for English Language and Literature, code number 184, session 2023-24, class 9th. As per previous papers, the paper is divided into three parts: reading skills of 20 marks, writing skills and grammar of 20 marks, and language through literature of 40 marks. This time, not this time, but every time CBSE also allots periods which should be given to a particular skill. So for the reading skills, CBSE says that minimum 40 periods should be given. For writing skills and grammar, 40 periods. And for language through literature, at least 50 periods should be given. Now this is a suggestive number. Suggestive number means that आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो according to the requirements of your class, but this is the recommended periods which the CBSE has given. Now let's start with the section. Section A is reading skills of 20 marks. It will have two questions. दो questions होंगे of 10 marks each. First question will be a discursive passage question. The passage will be discursive type. Discursive type का मतलब है किसी एक टॉपिक को लेकर उसे डिस्कस किया जाएगा, एंड द वर्ड लिमिट ऑफ दिस पैसेज विल बी 400 to 450 words. You will have to answer around 10 questions, right? And there will be a combination of multiple choice questions, objective type questions, और very very short answer questions, right? ये आपका जो skills हैं, कौन कौन सी skills को टेस्ट करेंगे, that is comprehension skill, interpretation, analysis, inference, evaluation and vocabulary. ये दोनों questions आपकी ये skills को टेस्ट करेंगे. जो second passage होगा ये एक case based factual passage होगा. इसका मतलब है कि आपको इसमें statistical data या कोई chart वगैरह दिया जाएगा जिसको आपने interpret करना है, analyze करना है, फिर उसका एक रिज़ल्ट, एक नतीजा निकालना है, उसको इवैल्यूएट करना है और फिर आंसर करना है. दोनों ही क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पैसेजेस विल बी ऑफ अराउंड 600 to 700 वर्ड्स. नेक्स्ट सेक्शन इज राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर. ग्रामर विल बी ऑफ 10 मार्क्स जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर एनी 10 आउट ऑफ दोस 12 क्वेश्चंस. टॉपिक्स जो ग्रामर में है दे आर डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में आपको कमांड्स एंड रिक्वेस्ट करने हैं, स्टेटमेंट्स करने हैं एंड क्वेश्चंस करने हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है. द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस विल बी गैप फिलिंग, एडिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस. इसमें आपकी एक्यूरेसी स्किल्स, आपके स्पेलिंग्स, आपके पंक्चुएशन, आपका ग्रामर, ये सब क्वेश्चन, ये सारी स्किल्स आपकी ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जज किया जाएगा, असेस किया जाएगा. इसी के साथ वी कम टू द राइटिंग स्किल्स विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स. 2 क्वेश्चंस ईच ऑफ 5 मार्क्स इज़ गोइंग टू बी देयर. दोनों की ही वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स है. दोनों में ही इंटरनल चॉइस है, दैट इज़ 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा. आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा. ये चीज़ क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एन इवेंट, इट कैन बी अ सिचुएशन, और यू कैन बी गिवन सम वर्बल और विजुअल क्यू, और उस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. And the second question will be writing a story. Again, you will either be given a cue, you will be given a title, या फिर स्टोरी का ऑप्शन होगा डायरी एंट्री. तो या तो आपको आपको या तो 2 स्टोरीज होंगी या 2 डायरी एंट्रीज होंगी, या मे बी 1 स्टोरी एंड 1 डायरी एंट्री जिसमें से आपको दोनों में से कोई एक चीज़ अटेम्प्ट करनी हो. Coming to the next section, we have language through literature, which is of 40 marks. 10 marks will be based on multiple choice or objective type questions, and 30 marks will be subjective. इसमें जो multiple choice या objective type questions हैं, they will be based on reference to context questions. आपको 2 extracts दिए जाएंगे either from drama or prose, and out of those 2 you will have to attempt 1 extract. सिमिलरली आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे पोइट्री से
और दोनों एक्सट्रैक्ट्स में से, पोइट्री के दोनों एक्सट्रैक्ट्स में से आपने कोई एक एक्सट्रैक्ट करना होगा. You will have to attempt, that means one extract out of either drama or prose and one extract out of those given from poetry. The question types will assess your interpretation skills, your analysis, your inference, your evaluation, critical appreciation and vocabulary. So whenever you start studying your literature, focus on these type of questions. Why? ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, सही नतीजा था या गलत नतीजा था. वोकैबुलरी मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये साथ के साथ आपने चीज़ें देखनी होती हैं जो आपको स्पेशली जो फुट नोट्स में दिए गए होते हैं या साइड नोट्स में आपको जो मार्जिनलाइज्ड आपको वर्ड्स दिए गए होते हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना होता है. ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे. जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं दे विल बी ऑफ 3 मार्क्स ईच. ये 2 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 8 विल बी फ्रॉम द बुक बी हाइव एंड क्वेश्चन 9 विल बी फ्रॉम द बुक मोमेंट्स. जो बी हाइव के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4. वर्ड लिमिट फॉर बोथ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इज 40 to 50 वर्ड्स. एंड जो आपकी सेकेंड बुक है मोमेंट्स, उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दे विल बी आस्क्ड एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2. जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 10 एंड 11, दे विल बी ऑफ 6 मार्क्स ईच एंड बोथ विल बी ऑफ 100 to 120 वर्ड्स. एंड 10th क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बी हाइव, 11th क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मोमेंट्स. एंड अगेन इंटरनल चॉइस होगा दोनों में. 2 क्वेश्चंस में से आपको एक करना है. और जो बी हाइव का जो क्वेश्चन है दैट विल असेस योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन, योर एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट. एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब होता है बियॉन्ड द क्लासरूम, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक. रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप उस सिचुएशन में होते हो, हाउ विल यू रिएक्ट और हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन एल्स टू रिएक्ट. तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड होगा. और जो मोमेंट्स में से पूछा जाएगा दे विल रिक्वायर इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंस. या फिर आपको कोई कैरेक्टर स्केच की, किसी का कैरेक्टर को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा. NCERT न्यू दिल्ली ने आपके लिए 3 बुक्स प्रिस्क्राइब की हैं. द फर्स्ट बुक इज़ बी हाइव, second is movements and the third is word and expressions part 1. So beehive के syllabus में कवर होता है the fun they had, the sound of music, the little girl, a truly beautiful mind, the snake and the mirror, my childhood, reach for the top, Kathmandu and if I were you. And poems include the road not taken, wind, rain on the roof, the lake isle of Innisfree, a legend of the Northland, no manna foreign, on killing a tree, and a slumber did my spirit see. The syllabus of movements includes the chapters The Lost Child, The Adventures of Toto, Ishwaran the Storyteller, In the Kingdom of Fools, The Happy Prince, The Last Leaf, A House is Not a Home, and The Beggar. The syllabus of the book Words and Expressions Part 1 includes Units 1 to 6 and Units 8, 10 and 11. Teachers को advice CBSE ने दी है that to teach grammar there should be classroom interaction among the peers, among different students and also with the teachers through activities such as role play, group work, etc. This will enhance your language skills. आपको लैंग्वेज यूज़ करनी आएगी, आपको बोलना आएगा, आपको सुन के समझना आएगा. सो क्लासरूम इंटरेक्शन इज़ अ मस्ट एंड द एम इज़ टू रिड्यूस द टीचर टॉकिंग टाइम एंड इंक्रीज द स्टूडेंट टॉक टाइम. जितना ज़्यादा बच्चा बोलेगा उतना ज़्यादा उसकी जो स्किल है, जो स्पीकिंग स्किल है, वो इन्हांस होगी. After discussing 80 marks, now we come to 20 marks internal assessment. These will be based on listening and speaking competences for which CBSE has recommended 30 periods. 20 marks की internal assessment होती है and listening and speaking skills की assessment will be of 5 marks
and CBSE recommends that they should be a regular practice. ये नहीं होता है कि आप बस एक दिन करो एक दिन ना करो. Listening and speaking should be done every day, regular basis पे करनी चाहिए. And activities such as role play, skit, dramatization, etc. may be used to develop these skills. For complete information on internal assessment, I have given the website over here, cbseacademic.nic.in. आप उस पर जाकर देख सकते हो. जो बाकी के 15 मार्क्स हैं, दे विल बी बेस्ड ऑन नोटबुक करेक्शन, योर पोर्टफोलियो एंड आपकी जो इंटरनल टेस्टिंग होती है उसका 5% वेटेज लेकर आपका टोटल 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा. Some of the activities suggested for internal assessment by CBSE are role play, simulating real life situations. Simulating real life situations का मतलब होता है कि आप एक real life की कोई situation, जैसे you are at a shop, you are buying something or you're selling something, or you are asking for information at the inquiry, or you're complaining about some kind of service. तो these are all known as simulating real life situations. तो उसके ऊपर आपकी speaking listening activity हो सकती है. Then dramatizing and miming. You can have problem solving and decision making activities. Then interpreting information given in tabular form and schedule. जैसे aircraft schedule है, air flights का schedule है, या फिर trains का टाइम टेबल जो होता है, इसका किसी को इन्फॉर्मेशन देने से रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है. यू कैन यूज़ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एज अ रिसोर्स फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालाइजिंग इश्यूज. यू कैन बोरो सजेशंस, सिचुएशंस एंड रजिस्टर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड द लर्नर्स फ्रॉम बुक्स एंड फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स एंड गेट न्यू एक्टिविटीज़. You can use language games, riddles, puzzles and jokes for internal assessment. You can also interpret pictures, sketches or cartoons. You can have debates, you can have discussions. You can narrate and discuss stories or anecdotes. Anecdotes होता है, stories होती हैं fictitious, कहानियाँ. जो anecdotes होते हैं ये भी कहानियाँ होती हैं, बट ये हमारी ज़िंदगी की, हमारी पर्सनल लाइफ की छोटी मोटी यादें होती हैं जो कहानियों का रूप ले लेती हैं. यू कैन रिसाइट पोएम्स, यू कैन वर्क इन पेयर्स एंड ग्रुप्स. ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअली हो. यू कैन वर्क इन पेयर्स एंड ग्रुप्स, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ मीडिया इनपुट्स लाइक कंप्यूटर, टेलीविजन, वीडियो कैसेट्स, टेप्स एंड अदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस. So with this I come to the end of the video. I hope that it proved to be a little informative for you. आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा. Please do not forget to like and share it with your friends. Thank you.